हेलो। कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे कोई करंट कैरिंग कॉइल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाए तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। Already in electrostatics we have discussed that when an electrical dipole is placed in an electric field, it experiences torque, and that torque is how much? P E sine theta, where P is electrical dipole moment, E is the electric field, and theta is the angle made by dipole moment with the electric field. In earlier lectures, we have studied that a current carrying coil also behaves like a magnetic dipole. So, under the similar lines, the torque experienced by the current carrying coil in a magnetic field will be torque that is equal to mb sine theta, where m is magnetic dipole moment of the coil, b is the magnetic field, and theta is the angle made by the direction of magnetic moment of the coil with the direction of magnetic field. So let us find out the torque experienced by current carrying coil. Torque experienced by current carrying coil when placed in uniform magnetic field. First, we will calculate the torque experienced by a rectangular coil, plain rectangular coil, when placed in a magnetic field, and after that we will generalize the formula. So first, for simple, we are considering that the magnetic field is existing along horizontal direction, along x-axis. इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस जो हैं वो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स में इसको क्या करते हैं, आप अपनी कॉपी की रूल्ड जो लाइंस हैं, लाइंस जो हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, और इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, एंड दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज capable of rotating about a vertical axis. That is capable of rotating about a vertical axis. अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं लगा है, that is capable of rotating about this axis. This is the current carrying coil P Q R S. Current carrying coil PQRS. PQ is equal to RS is equal to L, और भाई QR is equal to SP is equal to B. Therefore, we can take that area of this coil is LB. Area of this coil can be taken as LB. Simple सा हम मैथमेटिकल फार्मूला डेराइव करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। What is the torque? Torque is force multiplied by perpendicular distance. If a couple is acting on this, then one of the force multiplied by the perpendicular distance between two forces. तो हम क्या करके चलेंगे, हम इसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कॉइल कैलकुलेट करना चाहेंगे। लेट
It is carrying current like this. I be the current. सिंपल आराम से करेंगे. आई बी द क्या मान लिया, करंट मान लिया. अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और चीज मान लेते हैं. थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि प्लेन है हमारे पास, तो हम प्लेन के साथ एंगल डिफाइन करके चलते हैं. बट आपको पता है कि एरिया वेक्टर इज नॉट अलोंग द प्लेन ऑफ कॉइल, एरिया वेक्टर इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. एरिया वेक्टर जो होगा वो आपके पास किस डायरेक्शन में होगा? एरिया वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन में होगा. दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. इस कॉइल का एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट इज मेकिंग एंगल अल्फा. हमने इसको क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर एन में लिख देता हूं, इसको यूनिट वेक्टर एन लिख देता हूं. यूनिट वेक्टर एन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर आपका थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल made by normal to the plane with magnetic field. जरूरत होगी तब हम इसको यूज कर लेंगे. Now we will calculate different forces. We have four sections of the coil. One is PQ, the other one is QR, the third one is RS, and then fourth one is SP. Then what will be the force on PQ? I am representing it by F1, force on PQ. I am representing it by F1. F1 is equal to I और PQ क्रॉस B. तो ये हमारे पास I L B साइन थीटा हो गया, साइन 90 हो गया बल्कि, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने मान करके चला है कि भाई PQ जो है ये साइड और RS साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. रेक्टेंगुलर कॉइल को कुछ इस तरह से रखा गया है कि भाई आपके पास two of the sides are perpendicular to the direction of magnetic field. तो ILB sin 90 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर हमारे पास इस PQ वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो तो हो गई हमारे पास. फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक फील्ड की, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन किस चीज की? करंट की, देन थंब विल एक्सपीरियंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये आपके पास व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? Direction of this force will be outward to the plane of board. Outward यानी towards the reader होगी या outward to the plane of board. Plane of, you are writing on paper, therefore I am writing paper. Outward to plane of paper by Fleming's left hand rule. Now this is force on PQ. Now what is force on QR? Force on QR, that is F2 is equal to, F2 किसके बराबर हो गया आपके पास? I QR क्रॉस B. I QR क्रॉस B, तो ये हो गया मेरे पास IBB साइन थीटा. ये किसके बराबर हो गया? IBB साइन थीटा, क्योंकि QR की वैल्यू किसके बराबर है? B के बराबर है, ऑलरेडी हमने अज्यूम कर रखी है. IBB साइन थीटा, और ये क्या होगा? ये आपके पास डाउनवर्ड होगी बाई राइट हैंड थंब रूल.
ये क्या होगी आपके पास, डाउनवर्ड होगी। कैसे डाउनवर्ड होगी? बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे अप्लाई करके देख लेते हैं, हम अप्लाई करके देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है हमारे पास? राइट हैंड थंब रूल आपका इस तरह से है कि थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा अगर आपके पास कर्लिंग ऑफ फिगर किसके क्रॉस जाए? क्यू आर क्रॉस बी की तरफ जाए। अब आपके पास मैं दो चीजें लेकर के चलता हूं कि हमारे पास वी हैव, मैं एक पेन ले लेता हूं, एक मार्कर ले लेता हूं। मार्कर जो है वो आपका क्यू आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्कर किस चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पेन किस चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा एंगल थीटा है। क्रॉस व्यू कर लेता हूं, ये आपके पास क्यू आर की डायरेक्शन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो क्यू आर क्रॉस बी बाई राइट हैंड रूल। तो फिंगर्स आपकी कहां से कहां आ रही है? क्यू आर से बी की तरफ। इसको रोटेट कर देता हूं ओरिजेंटल, ये आपके पास क्यू आर क्रॉस बी आ गया। आपकी क्यू आर साइड है ये ओरिजेंटल रहेगी, एस पी साइड है ये ओरिजेंटल रहेगी, पी क्यू हमेशा वर्टिकल रहेगी, आर एस हमेशा वर्टिकल रहेगी। तो ये आपके पास क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। तो ये फोर्स आपके पास डाउनवर्ड बाई राइट हैंड थंब। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन? ये डाउनवर्ड हो गया। दिस इज F2. Now this is the direction of current. Force on SP RS, तो वो हो गया हमारे पास F3 इज इक्वल टू आई आर एस क्रॉस बी, और ये भी आपके पास आई एल बी साइन 90 हो गया भाई। और ये किधर होगा भाई? अगर हमारे पास F1 फोर्स PQ के ऊपर आउटवर्ड फोर्स था प्लेन ऑफ पेपर के, तो इसके ऊपर इनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? अपोजिट हो गई। अप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरह से अप्लाई हो गया। आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फर्स्ट फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, central finger is showing the direction of current, then thumb will represent the direction of force experienced by the current carrying wire। तो ये क्या होगी आपके पास? inward to the plane of paper, inward to the plane of paper by FLHR। and what is force on SP? that is F4, that is equal to ISP क्रॉस B, और ये आपके पास IBB साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये डायरेक्शन है बेटे करंट की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की ये वाली डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है। तो ये थीटा थोड़े लिया जाएगा, थीटा तो ये लिया जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया? 180 माइनस थीटा। ये एंगल, ये दो वेक्टर हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो एंगल 180 माइनस थीटा लिया जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ थीटा। और ये किधर होगा? ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड बाई फ्लेमिंग्स, सॉरी, राइट हैंड थंब रूल। तो अब हमने चारों फोर्स लगा लिए। अब इन चारों फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा भाई? इन चार फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा? पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पेयर बनाने की कोशिश करते हैं? आपके पास क्या है कि PQ के ऊपर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो PQ तो बाहर आने की कोशिश कर रही है, PQ के ऊपर आपका आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। और RS के ऊपर आपका, RS के ऊपर आपका किधर फोर्स लग रहा है? RS के ऊपर आपका इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये F3 और ये F4। अब PQ के ऊपर तो आपका बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, और RS के ऊपर आपका अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कपल फॉर्म कर दिया उन्होंने। दो फोर्स हैं, इक्वल हैं, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? कपल फॉर्म कर दिया। तो कपल फॉर्म कर दिया, तो हमारे पास इसकी वजह से तो रोटेशन होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ F2 एंड F4? F2 और
F4 का क्या रिलेशन है, ये F4 है, ये F2 है, दे आर अलोंग द सेम लाइन। वो क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों के अलोंग होंगे, सेम लाइन के अलोंग होंगे, तो उनका ना तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट होगा और ना रोटेशनल इफेक्ट होगा। रोटेशनल इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, बट ये तो कोलिनियर फोर्सेस हैं, एंड कोलिनियर फोर्सेस जो है वो आपका रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करते। और आपका कोलिनियर फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट हो दो फोर्स, तो उनका नेट रिजल्टेंट 0 हो गया। तो F2 और F4 तो बेटा हमारे पास एक दूसरे को रोटेशनल इफेक्ट भी उनका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ट्रांसलेटरी इफेक्ट भी हमारा उनका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास, F3, F2 and F4 being equal and opposite, acting along same line of action, neither produce translatory effect, nor it produce rotational effect. F2 और F4 being equal and opposite, acting in same line, acting same line of action, on same line of action या opposite, acting having, acting की जगह having कर लेता हूं मैं, having same line of action, so therefore neither they produce translatory effect nor they produce rotational effect. Then what is about F1 and F3? F1 and F3 again equal and opposite. F1 and F3 again equal and opposite. So having different line of action, therefore they may produce a couple, and movement of couple is given by what? Moment of couple क्या है हमारे पास? Moment of couple is given by, that is said to be torque. What is torque? One force multiplied by perpendicular distance between opposite forces. तो अब हमें वन फोर्स तो पता है, वो किसके बराबर था, ILB के बराबर था, वन ऑफ द फोर्स वाज ILB. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो मैं एक काम करता हूं, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक को P मान लेता हूं और एक को S मान लेता हूं. S के ऊपर किधर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, S के ऊपर इनवर्ड लग रहा है, तो मैं इनवर्ड को अपवर्ड लिख इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और P के ऊपर आउटवर्ड लग रहा है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास थीटा था. कितनी रोटेट हो रखी थी कॉइल हमारी, कॉइल का प्लेन हमने क्या कर रखा है, थीटा से रोटेट कर रखा था, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता था, थीटा के एंगल बनाता था. तो ये हमारे पास व्हाट वाज दिस इज बी, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, बी कॉस थीटा. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, बी कॉस थीटा के बराबर हो गया. तो टॉर्क किसके बराबर हो गया बेटे, ILB तो फोर्स हो गया, IL कैपिटल B तो फोर्स हो गया, और B cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया.
तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? टॉर्क किसके बराबर हो गया हमारे पास? एन आई ए बी कॉस थीटा हो गया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? एन आई ए बी कॉस थीटा हो गया। अब एन आई ए तो हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है, और यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कंपेयर करके। किससे कंपेयर करके? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा से कंपेयर करके इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। किसके बराबर डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर डिफाइन कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। डोंट फॉरगेट व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय प्लेन। थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन एम एंड बी। एम और बी के बीच में एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? एम का एंगल तो बेटा, एम की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा नहीं बनाता। थीटा तो प्लेन बनाता है। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हमें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का एंगल चाहिए। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वो हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। और अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है? अल्फा और थीटा किसके बराबर? ऐड होकर के 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं ये पुट कर देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, और टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। और इट कैन बी एस्टेब्लिश दैट टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस। टॉर्क किसके बराबर है आपका? एम क्रॉस बी के बराबर है। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एम बी साइन थीटा। एंड दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर every type of loop, whether the loop is planar or not. चाहे वो लूप आपकी प्लेनर है या नहीं है, we will establish the example, we will discuss the example. चाहे वो आपकी जो लूप है, ये तो मैंने रेक्टेंगुलर के लिए डिफाइन किया। अगर रेक्टेंगुलर ना हो करके अगर हमारे पास सर्कुलर हो, तो ये जो मेरे पास एरिया है एन आई ए जो हमने लिया है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर ले लेंगे इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो वो टोटल हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल आपका किसके बराबर होता है? एन आई ए के बराबर होता है। एंड इट मे बी ऑफ एनी शेप। What will happen if the loop is not a planar loop? We will discuss little bit later. अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। Let me assume that if plane of coil is parallel to magnetic field. मान लेते हैं प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो क्या है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा हमें अल्फा चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, हमें अल्फा चाहिए। प्लेन ऑफ द कॉइल अगर आपके पास पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, टॉर्क किसके बराबर है हमारे पास? एम बी साइन अल्फा के बराबर है। हियर थीटा इज इक्वल टू 0 बट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क आपके पास किसके बराबर होगा? एम बी के बराबर होगा, मैक्सिमम। This may be the case. This may be the case. और अगर if plane of coil is perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, इस केस में थीटा 90 होगा और अल्फा 0 होगा। इस केस में थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, और अल्फा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 0 के बराबर आ जाएगा। दिस में बी द केस। दिस में बी द केस। यहां पर हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा।
यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा ही नहीं, F इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, F इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, करंट आपका नीचे की तरफ आउटवर्ड, और इधर इसके किस तरफ लगेगा, इनवर्ड, तो यहां से ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब हम याद करके चलें, what was the potential energy of electrical dipole in a uniform electric field? That potential energy U was equal to minus P E cos theta or minus P dot E. So similarly, potential energy of a current loop in a magnetic field is equal to minus MB cos theta. माइनस क्या होगा आपका, एम बी कॉस थीटा, और दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डॉट बी। ठीक है, यू मिनिमम कब होगा, यू मिनिमम होगा माइनस एम बी के बराबर, कब होगा, जब आपका अल्फा किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो, सॉरी एम बी कॉस थीटा और एम बी कॉस थीटा कॉस अल्फा, एम बी कॉस अल्फा लिखूं, कॉस अल्फा लिखूं, तो व्हेन अल्फा किसके बराबर हो आपका, 0 के बराबर हो, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0, अल्फा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से क्या होगा, अगर यू मिनिमम होनी चाहिए ना मेरी, यू मिनिमम होनी चाहिए तो प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो कोई भी मेरे पास, मान लीजिएगा कोई भी मेरे पास ये इस तरह की लूप को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो सबसे पहले तो अगर फ्लेक्सिबल लूप है तो ये जो लूप का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर बनना चाहेगा, किसके परपेंडिकुलर बनना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनना चाहिए, क्योंकि वो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो अल्फा 0 होगा, और प्लेन अल्फा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो प्लेन परपेंडिकुलर बनना चाहिए चाहेगा। दूसरा, यहां पर आपके पास ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो यू विल बी मोर नेगेटिव इफ एम इज मोर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज मोर, तो इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा किसके बराबर होता है, एन आई ए के बराबर होता है, तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए तो आपके पास क्या होगा, फॉर गिवन पेरीमीटर सर्कल हैज द मैक्सिमम एरिया। तो इसलिए अगर किसी फ्लेक्सिबल लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो वो दो चीजें करेगी, एक तो करेगी कि वो अपने प्लेन को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ले आएगी, क्योंकि उस जगह पर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जब वो लेकर के आएगी तो उस जगह पर उसके ऊपर टॉर्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और दूसरा, वो अपना एरिया मैक्सिमम करना चाहेगी, और फिर गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम, तो क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, सर्कुलर फॉर्म। अब मैं छोटा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, लिटिल बिट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मान लेता हूं कि हमारे पास जो लूप है दैट इज नॉट ए प्लेनर लूप, तो अगेन मैं सिंपल ही ले रहा हूं कि भाई मेरे पास एक लूप थी, क्या है हमारे पास एक लूप, एक लूप एक्स जेड प्लेन में रखी है, कौन से प्लेन में रखी है, एक्स जेड प्लेन में रखी है, ऐसे एक्स जेड प्लेन में रखी है, इस तरह से कि कौन से प्लेन में रखी है, एक्स जेड प्लेन में रखी है, तो ये तो सिंपल सिंपल हो गया हमारे पास, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर हो गया। पर अगर हमारे पास एक लूप को क्या हो गया, हमने उस लूप को कुछ इस तरह से रख दिया, फोल्ड कर दिया, उस लूप को हमने फोल्ड कर दिया, 90 डिग्री के ऊपर फोल्ड कर दिया। मान लेते हैं ये मेरे पास मान लेते हैं ये मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास
ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट्स। ये कौन सा एक्सिस है मेरा? ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है मेरा? ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है मेरा? ये जेड एक्सिस है। हमने इसको फोल्ड कर दिया तो दो लूप बन गए, ए बी सी डी ई एफ। दो लूप बन गए बेटा। एक तो ए बी सी डी मान सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं m1 मानता हूं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं किसके बराबर मान लेता हूं? m1 के बराबर मान लेता हूं। और एक बन गया हमारे पास, ये तो m1 हो गया, एक हो गया मेरे पास ए डी ई एफ। ए डी ई एफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं अलग से मान लेता हूं, किसके बराबर मान लेता हूं? m2 के बराबर मान लेता हूं। तो क्या हुआ मेरे पास? व्हाट विल बी द m विल बी इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक मोमेंट m1 किसके पैरेलल होगा बेटा? m1 किसके पैरेलल होगा? m1 वेक्टर लिख रहा हूं बेटे मैं, वो m1 अगर मैं बात करके चलूं कि ये कौन सा प्लेन है आपके पास? ये आपके पास XZ प्लेन है, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा इसका? जी। एंड व्हाट इज m2? m2 के परपेंडिकुलर अगर मैं डाल करके चलूं तो m2 कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में है। YZ प्लेन में है तो ये आपका YZ प्लेन हो गया, x एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो m2 क्या हो गया? I हो गया। तो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट? नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास m जो है वो किसके बराबर हो गया? m जो है वो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर के बराबर हो गया। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मोटी सी बात है कि अगर मेरे पास दो, एक कॉइल है, जैसे ऐसे कॉइल है, ये कॉइल है। अब यहां पर मैंने इसको इस लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी थीटा एंगल रोटेट हो गया, क्योंकि नॉर्मल भी उतना ही एंगल रोटेट होगा जितना एंगल आपका प्लेन रोटेट होगा। तो अगर मैंने इसके प्लेन को जैसे मैं मान करके चलूं कि भाई मेरे पास एक ये इस तरह से लूप था, लाइक दिस, इस तरह से आपके पास कोई लूप था और हम इसको यहां से बेंड करने लगे, ऐसे बेंड करने लगे, तो जितना प्लेन बेंड होगा उतना ही नॉर्मल बेंड होता चला जाएगा। यानी दो मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच में एंगल किसके बराबर होता चला जाएगा? थीटा रोटेट किया तो थीटा, अब ये 90 डिग्री हो गया, इस तरह से आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका तो आपका एरिया वेक्टर सेम होगा, पर मैं इसको रोटेट करता चला जाऊं तो दो रेक्टेंगुलर पीस हो गए, दो रेक्टेंगुलर पीस का अलग अलग एरिया वेक्टर डलेगा और उनके बीच में एंगल वही होगा जो प्लेन्स के बीच में होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोप्लेनर लूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास काम चल जाएगा। तो हम वेक्टर एडिशन से हम उस नॉन कोप्लेनर लूप के टुकड़े का मार्क कर लेंगे, प्लेनर 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 प्लेनर, और उनके बीच में एंगल डिफाइन करके और वेक्टर एडिशन से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे। थैंक यू।